गो लाइव, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। शुरू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू सेकेंड पार्ट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। तो शुरू करते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू अगर एक स्टेटमेंट है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे लिखना चाहूँगा। व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ दिस? इसका कॉन्वर्स क्या होता है जी? प्लीज टेल मी। हाँ हाँ फाइन, नो प्रॉब्लम। कॉन्वर्स क्या होता है? क्यू इम्प्लाइज पी, बराबर है क्या? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव negation q implies negation p, and inverse negation p implies negation q. What will be the answer here? The answer क्या है? negation q implies negation p. C is the answer. Next question number 7. The cheap food is not good food, P says. Q says good food is not cheap food. The statement P and Q is, P and Q are, क्या बोलते हैं? तो मैं क्या बोलता हूँ इसे एनालाइज करने के लिए? What I will say here is, let statement A is, it is cheap food. It is cheap food, and B says it is good food. It is good food. तो स्टेटमेंट P क्या दिया है बताइए मुझे? What is P? What is P? P says if the food is cheap, इसका मतलब क्या है? If the food is cheap, or if it is a cheap food, if it is cheap food, then it is not good food, है ना? यही है ना? So it is P implies negation Q. So A implies negation B. A implies negation. P says it is A implies negation B. Is it not? सही है? On the contrary, if I am talking about Q statement Q, if it is good, क्या है? Good food is not cheap food. If it is good food, then it is not cheap food. तो ये जो दूसरा है Q, Q का लॉजिकल मीनिंग क्या हो गया? इफ इट इज गुड फूड, B implies negation A. ऐसा नहीं हुआ क्या? B implies negation A. Is it? ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि आर दे लॉजिकली इक्विवेलेंट. I want to check whether they are logically equivalent. अब आप मुझे एक चीज बताइए, what is the formula for P implies Q? क्या फॉर्मूला होता है P implies Q का? Please tell me. हेलो, नेगेशन P और Q, ठीक है ना? ये होता है P implies Q. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मुझे बता दो प्लीज. दिस इज रिटन, इसका लिखा जाता है नेगेशन, मतलब दिस इज नेगेशन B और नेगेशन A. करेक्ट है? इन अदर वर्ड्स कैन आई से दिस इज नेगेशन A और नेगेशन B, और इन अदर वर्ड्स कैन आई से इट इज नेगेशन ऑफ A एंड B. यस और नो? वेयर एज अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या बनेगा? नेगेशन A और नेगेशन B. तो ये तो सेम हो गए ना? आर दे लॉजिकली इक्विवेलेंट? यस दे आर. आर नॉट दे? देखो ना यहाँ पर, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट.
so they are logically equivalent. Is this clear? समझ में आ गया? Next question. We'll go for next question. ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था. This was little different. Correct? चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 8. Which of the following is wrong? इनमें से कौन सा गलत है? I think I'll place it over here. Which of the following is wrong? P implies Q is logically equivalent to, ये सही है. P implies Q. So this is correct. So this is not the answer. क्योंकि अपने को wrong चाहिए. ठीक है? Next. क्या दिया है? If the truth values of P, Q, R, RT, FT respectively, then the truth value of this, मुझे B को मतलब सॉल्व करना पड़ेगा. Truth value of P or Q, ये, so it is P or Q and Q or R. तो P के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? True or false and false or true. So true or false is true and false or true is true and this is equal to true. तो ये सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है. सही है? हाँ, सी भी सही है क्या? नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R, तो ये भी सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है. सो नेचुरली डी इज आंसर. ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज ट्रू. चेक करिए, हम इसको चाहिए तो चेक कर सकते हैं. P और Q, तो अगर मेरे पास P है, I have got Q, I have got P or Q, I have got negation of P or Q, and this is true, 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 false, false, true, false and false. This is true, true, true and false. This is false, false, false and true. And I want the ending of these two. So finally P and negation of P or Q क्या आएगा बताइए? एंडिंग चाहिए. This is false, this is false, this is false and this is false again, है ना? Again this is false. So what does this mean? What does this mean? It is always true? नहीं, it is always false. तो ये गलत है, इसलिए ये सही आंसर है. Is this clear? सही है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट P एंड Q let P and Q denote the following propositions. क्या दिया है यहाँ पे? A quadrilateral is a parallelogram. Opposite sides are parallel. Then the compound proposition, a quadrilateral is a parallelogram if and only if the opposite sides are parallel is represented by D. If and only if statement. Next question, question number 10. The negation of the statement this is. इसका negation चाहिए. Let me call this as A implies B. इसका negation क्या होता है? A and negation B. Correct? तो मतलब इसका क्या बनेगा? यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो A के जगह पर आएगा P and R and negation of R or Q, जो कि क्या बनेगा? It is P and R and negation R and negation Q. So what is the answer? Answer is A. Is this clear? Okay. अगला question. Which of the following is contradiction? इनमें से कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है? तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज P एंड Q, नेगेशन ऑफ P और Q, एंड फिर P एंड Q इज एंडेड विद नेगेशन ऑफ P और Q. P एंड Q क्या होता है बताइए मुझे? इट इज ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स. सही है. P और Q क्या होता है?
ट्रू 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 एंड फॉल्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स 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 एंड ट्रू, और इन दोनों का एंडिंग होगा फॉल्स 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 एंड फॉल्स, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना? तो ए इज द आंसर। इज दिस ओके? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर ऐसे क्या कर सकते हो, अगर सी आंसर होता तो आपको यहाँ तक आ जाना पड़ता, तो वो थोड़ा सा लेंदी बन जाता। अच्छा, ऐसा समझो कि इसके अंदर पी क्यू और आर भी दिया है और फिर टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इट इज इजी बट टाइम कंज्यूमिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू, और टी एफ टी एफ टी एफ लास्ट में आर में होता है। आएगा ना, वैसा वाला प्रॉब्लम आएगा। द नेगेशन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इफ द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर देन इट इज अ रोम्बस। इसका नेगेशन चाहिए मुझे, क्या आएगा? P and negation Q. If the quadrilateral is square, the quadrilateral is square and it is not rhombus. So I think it is quadrilateral is square and it is not rhombus. C is the answer. Is this okay? बाकी के ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। Take P for hard work, Q for success and R for job. Then P and Q and negation R is the compound statement. He worked hard, क्या होगा ये? And was successful in exam. But मतलब and could not get the job. A is the answer. Is this okay? बाकी के नहीं है। It is not true that वगैरह वगैरह कोई जरूरत नहीं। He worked hard and he was successful in the examination and he could not get the job. Very bad, very sad statement. This is next question. The logical statement P or Q and P and negation Q is, क्या पता है? पता नहीं क्या है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा and negation of P or Q, करेक्ट? ये है ना, इसको मैंने ऐसा लिखा है। So it is P or Q. So it is actually P and negation P is always false. So this is contradiction. ये देखो, इसको शॉर्टकट बोलते हैं, नहीं तो फिर पूरा का पूरा करते बैठो। नो, दिस इज नॉट, मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Let P and Q be the proposition. P says triangle ABC is right angle triangle. Q says the Pythagoras theorem is obeyed. आपको दिखाई दे रहा है? बड़ा करना है और क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। Then Q if and only if P. The Pythagoras theorem is obeyed if and only if triangle ABC is a right angle triangle. Yeah, A is the answer there. Correct ना? Pythagoras theorem is obeyed if and only if ABC is a right angle triangle. सही है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 16। Let there be two propositions. I take only bread for breakfast. I don't take anything for breakfast. ये शायद हमने किया था, है ना? The compound statement I take only bread for breakfast or P, or I don't take, or Q. B is the answer. Lame ना? आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर ये और 10 क्वेश्चन बस। 28। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नेगेशन P और नेगेशन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। कुछ नहीं, यहाँ से हम सिर्फ नेगेशन कॉमन बाहर निकालेंगे। सो दिस इज P एंड Q. So this is negation of P and Q. B is the answer. सही है, राइट? अगला क्वेश्चन, वेरी लेम। The negation of the statement this is P and Q. मुझे चाहिए इसका नेगेशन, तो क्या आएगा? नेगेशन P और नेगेशन Q, मतलब क्या आएगा? 10 is less than or equal to 5 और 2 is greater than or equal to 7. क्या है आंसर? A ना? सही है। नेक्स्ट,
P says it is raining and Q says it is pleasant. Negation P इसके जगह पर आएगा and ना, and Q, negation P and Q. A is the answer. बहुत स्मार्ट यार मेरे बच्चे, बहुत स्मार्ट. आगे बढ़ते हैं जी, बताइए. P and Q denote I take medicine and Q says I can sleep. Then the compound statement बताइए. If I do not take medicine, then I cannot sleep. If I do not take, then yeah, A is the answer ना. सही है ना. Next. Indicate which of the following propositions is a tautology. टाउटोलॉजी क्या करने का इसका यार, मेरे को इसका करना पड़ेगा ना. ये जो A है, आई कैन राइट दिस एज नेगेशन ऑफ P एंड Q. और ये क्या है, इज दिस P implies Q? P implies Q है ना, ये implies ही तो होगा ना. ये कैसे चेक करें? तो मुझे यहाँ पर कॉलम्स लगेंगे P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, क्योंकि मैंने एंड दिस इज P और Q. मुझे बताओ व्हाट इज P एंड Q का, दिस इज ट्रू फॉल्स. आंसर करो पहले, गलत है तुम्हारा आंसर. आई एम प्रूविंग ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और ये आएगा फॉल्स. सुनो, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू. P implies Q कब होता है, फॉल्स या ट्रू? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. सही है. ट्रू इधर क्या आएगा, ट्रू implies फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू है. करेक्ट ना. और मुझे इन दोनों का ऑरिंग चाहिए, तो दिस इज negation of P और negation Q और P और negation Q. तो ये जो फाइनल आएगा, ये आएगा ट्रू 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 एंड दैट इज द आंसर. नहीं आंसू का है, ऐसा नहीं होता. कितने बताओ तुमको मैं, दैट इज, सोचो भी मत इस लाइंस पर कभी. नेक्स्ट. The proposition the proposition this is क्या होगा? The proposition, देखो मुझे P and negation P, P implies negation P, नहीं P implies negation P क्या आएगा? P implies negation P. And negation P implies P. तो ये क्या आएगा जरा मुझे बताओ. इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज फॉल्स. आपको जो इम्प्लीकेशन वाला है पता है ना, P एंड Q एंड P implies Q, उसमें अगर आप देखते हो तो ट्रू 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 आएगा, ट्रू implies false is false, और बाकी सब ट्रू ना, एंड false implies false is true. तो यहाँ पर अगर ये ट्रू है तो ये false होगा, और ये false है तो ये ट्रू होगा. Are you understanding what I'm saying there? If it is P and negation P, तो ये true implies false, true implies false is हमेशा false, and false implies true is always true. सही है. Whereas negation P, false implies true is true, but true implies false is always false. और इन दोनों का एंडिंग जो होगा, that is P implies negation P and negation P implies P, इन दोनों का जो एंडिंग होगा, this ending is going to be always false, and therefore it is always contradiction. Is this clear? समझे? Right? Next question. Question number 23.
द नेगेशन ऑफ दिस, द नेगेशन ऑफ, मुझे इसका नेगेशन चाहिए ना, चलो लिख लेते हैं नेगेशन क्यू एंड, और ये नेगेशन नेगेशन कैंसिल, सही है ना, तो दिस नेगेशन क्यू एंड सी इज द आंसर, सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ P एंड Q, देखो व्हाट इज एन इक्विवेलेंट फॉर P इम्प्लाइज Q, यार जल्दबाजी मत करो ना प्लीज, व्हाट इज, मुझे ये बताओ व्हाट इज दिस, नेगेशन P और Q, ठीक है ना। सो व्हाट इज नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इसका बताओ मेरे को अभी, दिस इज P एंड नेगेशन Q, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस Q के जगह पर सिर्फ मैं नेगेशन Q ले लूं, तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो यहां पर P एज इट इज आएगा एंड Q आएगा, सो व्हाट इज द आंसर हियर, सी। समझ में आ गया, मैंने बोला जल्दबाजी नहीं करने का, ठीक है ना। क्या तुम लोग वहां पे मार्क्स लूज करोगे ना अगर गलत आंसर दोगे तो, प्लीज चेक दैट, ठीक है। एज इट इज आएगा एंड Q आएगा, सो व्हाट इज द आंसर हियर, which of the following is true for the proposition P and Q, which of the following is true, which of the following is for the P and Q के लिए कौन सा true होगा, P and Q is true, P and Q, P and Q क्या होता है रे, it is true, false, false and false, ऐसा होता है ना, हाँ। तो P and Q is true at least when at least one of is true, गलत है ये, this is wrong ना, it is true when both are true, P implies Q is true, हाँ, when P is true, अच्छा 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 अच्छा, देखो P implies Q के बारे में भी बात हो रही है भाई यहाँ पे, तो P implies Q क्या होता है, true implies true, true implies false is false, ये है ना, एंड बाकी सब ट्रू, सो दिस इज ट्रू व्हेन P is true and Q is false, ये भी गलत बोल रहा है, P डबल implies Q, P डबल implies Q के लिए क्या होता है भाई, ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स होता है और ये भी ट्रू होता है, सही है ना। तो इधर दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब वो ट्रू होता है। तो P डबल इम्प्लाइज Q इज ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू, नहीं वो फॉल्स होने के बाद भी होता है, तो ये पूरी तरह सच नहीं है, दोनों फॉल्स होते हैं तो भी ये ट्रू ही होता है। डिड यू गेट दैट? So 3 are not the answers, D is the answer in that case. Now what is that? Negation of P or Q is true. हाँ, negation P or Q, अगर मुझे P और Q लिखना होगा तो P और Q क्या होगा? True, true, true and false. And इसका negation क्या होगा जी? It will be false, false, false and true. तो ये कब होता है true? जब दोनों के दोनों false होते हैं तब. This is true. This is true when both are false. So that's the correct answer. Is this clear to you? थोड़ा सा ये अलग टाइप का था. This was little thoughtful. You needed to be little thoughtful here. The logical equivalent proposition of P double implies Q is, P double implies Q का logical proposition क्या होता है बताइए? And Q implies P. And Q implies P. A is the answer. Correct ना? P and Q or and R is logically equivalent to, ये अगर एंड है तो आप इसको ऐसा भी ग्रुपिंग कर सकते हो, तो बी इज द आंसर, सही है। द लास्ट, लेट देयर टू प्रोपोजिशंस ऑफ इट इज रेनिंग पी एंड इट इज प्लीजेंट, कंपाउंड इट इज नाइदर रेनिंग नॉर प्लेजेंट। नाइदर मतलब क्या है, इसका मतलब बताइए मुझे क्या होता है, नाइदर का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज नॉट प्लेजेंट।
हाउ डू यू पुट इट? इट इज निगेशन P, निगेशन Q, और यहाँ पर आप बोल सकते निगेशन ऑफ P और Q. ठीक है, व्हाट इज आंसर हियर? B. समझे? ओके फाइन. This is it for the logic. I'll switch over to vectors, 3D geometry, line and plane right away. ठीक है, immediately शुरू करते हैं. vectors, plane, 3D geometry, line and plane. Sorry.